Hello everyone. Today I'm going to talk about the question in series. So I'll start with the first question. So पहला question है, in order to use series and data frame functions, we need to import which library? So the option A is pandas library. Second option is option B is NumPy library. Option C is matplotlib library, and option D is panel library. So obviously we will use pandas library. So यहाँ पे simply what the answer will be? The answer will be A, pandas library. Let me write the answer. Okay, the answer will be A, pandas library. So how do we do it? I'll just show it to you. So I'll go. I've opened this Python. यहाँ पे हम क्या करेंगे? Import pandas as PD. The most important thing that you have to keep in mind is that when you write import pandas as PD, all the word will be in small letters. ठीक है, यहाँ पे जो मैंने PD लिखा है that can be only capital. Okay, so PD की जगह I can write anything, but I've written PD. PD is alias name. Okay, so let's go to the next question. The correct way to create an empty series S1 is, okay, assume all the libraries have been imported. तो पहला है हमारा S1 is equal to PD dot series. Now if you look here, series is in small letters. Series का S is always in capital. So option A नहीं होगा. फिर let us come to option B. S1 is equal to PD dot series है. Series का S capital है. And then inside bracket I have given none. None में all in small letters. So this is also not correct. Now let us come to option C. S1 is equal to PD dot series. और मैंने bracket ऐसे ही दे दिया है. So this option will create an empty series. Now let us come to option D. Option D में हमने क्या किया है? S1 is equal to PD dot series none. I've given none. None का जो first letter है that is capital. So option C and option D are correct. Option C and option D are correct. Option C and D are correct. Okay. Now I'll show it to you. Just let me take you to Python. So I've given S1 is equal to PD dot series. सीरीज को मैंने कैपिटल दिया है, बस ब्रैकेट ऐसे दे दिया. If I print S1, see we have got series and this is an empty series. I can also create an empty series by using keyword none. तो मैं pd dot series करूं और यहाँ पे none का n has to be capital. And now I'll press enter. Okay. So this is what it will do. It will also create an empty series. देखो. So this command I will just highlight. इसने भी empty series बनाया and this command using keyword none. The most important thing is that none का n will be capital. So this has also created an empty series. Okay, so both the options C and D are correct. Now let us move to the other question. Third question is series is. The first option is A, value immutable. This is wrong. Value mutable है, we can change the value. Now size mutable नहीं, we cannot change the size. अगर हमें size change करना है तो we have to create a new series. Size immutable. The option C is size immutable. ठीक है, this is the correct option. Option D क्या है? Heterogeneous. Heterogeneous नहीं होता है, homogeneous होता है. So the correct answer for this one is C. Size is immutable. Okay. Now let us come to the fourth question. Series is one of the. Now the options are option A, data structure in Python, library of Pythons, library of pandas, और data structure of data frame. So इसमें जो correct option होगा, option A will be the correct option. That is answer A. It is the data structure in Python. So basically we have to study two data structure. One is series and the other is data frame. And the third one is panel. Panel we don't have to study. So series is one of the data structures in Python. Now let us come to the question. Question number 5. Okay. Let me highlight this. Series is. Series क्या है? One dimensional. Okay. Then option B is two dimensional. C is multi-dimensional. D all of these. So the correct answer is option A.
So the answer is A. Okay. Now let us move to the next question. Question number 6. Let me highlight. The default indexes of a series starts from. Option A है 0 1 2 3. Option B है ABCD. Option C है 1 2 3 4. Option D है 10 20 30 40 50. So the correct option will be option A. कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए. ठीक है. I've just put a line on this. Now let us move to the question 7. While creating a series with the help of a dictionary, we don't need to define which argument. मतलब when we create a series, dictionary से जब हम बनाते हैं तो हम कौन सा argument नहीं define करते हैं. So the correct answer is index. C. Index. We don't define index argument. क्योंकि डिक्शनरी में जो डिक्शनरी has two things. One is key and the other is value. So key becomes the index. That is why index argument हम नहीं देते हैं. So the answer will be C. Now let us come to the next question 8. The A-range function. A-range function returns a क्या करता है? The first is A numpy array, B is list, C is tuple, D is dictionary. So इसका आंसर होगा A. इसका आंसर क्या होगा? A numpy array. For example, let me show it to you. Let me make things clear. जैसे let's come to the next question. Then I will dictate it. Then I will explain it to you. उसके बाद the next question is the range function. Okay, 9th question. The range function returns a option A list, B tuple, C dictionary, D numpy array. So the answer will be A list. ठीक है. So let me show it to you. तो पहले मैं क्या करूँगा? Let me create a series S3 is equal to PD dot series का S capital में लूँगा because this is the rule, this is the syntax. S has to be capital. This is you have to remember. अब मैं क्या करूँ? A range function मुझे यूज करना है. ठीक है. तो range and A range, there are two functions. So let me use range. Range मैंने दिया. I give start and stop value. So start 1 दिया मैंने. Stop 10 दिया. Step I am not giving. ठीक है. Step मैं नहीं दे रहा हूँ. Let me hit enter. So when you don't give a step value, automatically it will be increased by 1. So हमारा जो series create होगा that will be from 1 to 9. So this range function, let me highlight, ये return करेगा list को. What it will return? It will return a list. So let me just print S3. So 1 2 3 9. Let me show you the last value 9. और default index मैंने index अलग से नहीं दिया है. तो what is the default? 0 1 2. Okay, this is the default index. Okay, so range function does what? It returns a list. This is what you have to keep in mind. इसमें start, stop and step value देते हैं. But we will not go deep into it. I'll talk about A range function. So अब जब भी A range function use करोगे, so if I write like this A range, तो यहाँ पे it will show error. Let me hit enter. Because मैंने क्या बोला था? A range returns a numpy array. So in order to use A range, we have to use import numpy. मैं import numpy as np. np is an alias name. I can give any name here. Now let me hit enter and let me type the command again. So arrange use करने के लिए मैं क्या करूँगा? np dot arrange. So this will also do the same thing. Let me hit enter. ठीक है. देखो यहाँ पे it did not give any error. Why? Because I have imported numpy array और मैं numpy array के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ arrange function को. Just let me highlight. But when I used range function, I did not use any numpy library. So you understood the basic difference. So S3 को if I print, I will get the same output. See, यहाँ पे भी इसने मैंने लास्ट वैल्यू 10 दिया हुआ है, यानी 10 को इंक्लूड नहीं किया है. 10 minus 1 यानी 9 तक इसने लिया है. Now let us move to the next question. Okay. Okay. 10. Question number 10. In order to change the data type of a series, we need to import which library?
NumPy and pandas. The first is NumPy and pandas. B is pandas only. C is NumPy only. D is NumPy and panel library. So इसका आंसर होगा, आंसर will be A. आंसर will be A. हमें कौन सा लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा NumPy and pandas. Answer will be A. We have to import which? NumPy and pandas. For example, let me show you. जैसे मैं एक बार let me close it, let me reopen Python. Okay, I'm just reopening it so that I can show it to you. जैसे ये मैंने ओपन किया, the first statement obviously I will write is import pandas as pd. Okay, pandas is a library which has to be imported so that we can use series function. अब यहाँ पे मैं एक सीरीज बनाता हूँ, s1 is equal to pd dot series. यहाँ पे let me give few values 10, 20, 30, 40 suppose करो. Now when I print s1 तो default index जो आएगा 0, 1, 2, 3 will be our default index C. And let's see the data type. Int 64 is the data type. मैंने क्वेश्चन में पूछा कि we have to change the data type. So how, which library will we import? So इसके लिए हमें import pandas भी करना पड़ेगा और import numpy भी करना पड़ेगा. Import numpy as np मैंने किया. हम data type let us change s1 is equal to pd dot series मैंने लिखा. I will create the same series 10, 20, 30, 40. फिर मैंने इसे बंद किया. फिर मैं एक डी टाइप दूंगा. ठीक है, डी टाइप इज एन एट्रीब्यूट ऑफ अ सीरीज. डी टाइप इज इक्वल टू np डॉट, सपोज करो मैं फ्लोट चाहता हूँ, फ्लोट 632. तो जब आप फ्लोट दोगे तो ऑटोमेटिकली इसमें, लेट मी हाईलाइट, इसमें 0.0 विल ऑटोमेटिकली बी एडेड. 20 वाले में 0.0 विल ऑटोमेटिकली बी एडेड, 30 वाले में 0.0, 40 वाले में 0.0, और यहाँ पे जो डेटा टाइप इन 64 है दैट विल बी चेंज टू फ्लोट 32. So let me hit enter. Okay, let me print s1. Now you see this automatically decimal point has been added and the data type has got changed. So you have understood. हमें दो libraries import करना पड़ेगा. Import pandas as pd and then import numpy as np. Now let us move to the next question. Now in order to insert nan, see, look carefully here. NaN अगर आप देखोगे तो N पहला लेटर कैपिटल है, the second A is small, third is again capital. NaN stands for not a number. ठीक है, हम क्या करेंगे? Assume all the libraries have been. See, whenever we are using NaN value, we always have to import this NumPy library. Without NumPy, so the correct answer will be answer A. मैं highlight करूँ, this will be the correct answer. Okay. 11th का A will be the correct answer. Let me show it to you. They say NaN means not a number, means it's a blank value. I will talk about this when it come to the question. Suppose करो मुझे एक blank value add करना है, तो मैं क्या करूँगा? Suppose करो मैंने import numpy भी किया हुआ है, यहाँ पे तो np dot n capital A then n. This is what I will do. Okay. तो देखो NaN is a blank value, but it represents a floating point value. ये क्या करता है? floating point. तो जब भी आप NaN करोगे तो ऑटोमेटिकली सारे में डेसिमल ऐड हो जाएगा. मतलब 10 will become 10.0, 20 will become 20.0 and like that. So let me hit enter. Now S1 let me print. आप देखो NaN and look at the other values. Decimal point has already been added. Look at the data type. The data type got changed. क्योंकि मैंने बोला NaN not a number is for empty value, but it represents a floating point value. Okay. So let us come to the next question. At question 11 we have discussed. Question 12. NaN stores. Now NaN stores. मैंने बोला था ये क्या store करेगा? Floating point value को store करेगा. So the correct answer will be. So the options were A floating point, integer value, boolean value, string value. तो ये क्या स्टोर करेगा? फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में. अब आप देखो, दिस इज व्हाट आई हैव रिटन. इंपोर्ट pandas as pd, s1 is equal to pd dot series 10, 20 into 2.
तो ये 10 और 20 लिस्ट है, हमें कैसे पता चलता है कि ये लिस्ट है? लेट मी गिव मी अ मोमेंट, आई जस्ट एक्सप्लेन। जब मैं ये ब्रैकेट यूज करूं तो इट सिग्निफाइज इट इज अ लिस्ट। व्हाट इज इट? इट इज अ लिस्ट। जब मैं ये वाला ब्रैकेट यूज करूं तो ये क्या सिग्निफाई करता है? इट इज अ डिक्शनरी। जब मैं ये वाला ब्रैकेट यूज करूं ये क्या रिप्रेजेंट करता है? टपल। ठीक है, तो लिस्ट और टपल लगभग एक होते हैं। लिस्ट में इफ वी हैव टू स्टोर लिस्ट ऑफ वैल्यूज वी कैन आइदर यूज लिस्ट और टपल। डिक्शनरी में हम क्या करते हैं? डिक्शनरी में वी स्टोर की एंड वैल्यू पेयर। So I'm not going to talk about this. I've already spoken about this. So understood. तो अगर आप देखोगे, let me come to the point. तो यहाँ पे अगर आप ब्रैकेट देखो, just give me a moment. Let me highlight this. ये जो ब्रैकेट मैंने किया ये लिस्ट का है। Let me highlight this. ये ब्रैकेट लिस्ट का है, ये ब्रैकेट लिस्ट का है। तो ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट किसका? लिस्ट का है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने इनटू 2 किया हुआ है। जब आप लिस्ट में इनटू करते हो तो व्हाट हैपेंस? ये कॉपी बनाएगा। ये क्या करेगा? इट विल क्रिएट अ कॉपी, बिकॉज ये जो ब्रैकेट के वी आर डूइंग इट इनसाइड दिस ब्रैकेट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नोटिस हियर इज ये वाला ब्रैकेट के अंदर आप इनटू करोगे 2 तो ये 2 बार कॉपी बनाएगा। इनटू 3 करते तो ये 3 बार कॉपी बनाता, इनटू 4 करते तो 4 बार कॉपी बनाता, बिकॉज वी आर डूइंग इट इनसाइड द ब्रैकेट। ओके, नाउ लेट मी शो इट टू यू। सो द करेक्ट आंसर वुड बी यानी ये क्या करेगा? 10 20 कॉपी। दिस ऑप्शन विल बी द ओके, लेट मी हाईलाइट दिस। ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? तो एक बार मैं दिखा दूं, लेट मी s1 इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज मैंने बनाया। अब मैं क्या करूंगा? 10 20 फिर इनटू 2 मैंने किया, फिर मैंने ब्रैकेट ये क्लोज किया। तो मैं ब्रैकेट के अंदर कर रहा हूँ। सो व्हाट इट विल डू? इट विल कॉपी रेप्लिकेट, यानी 10 20 फिर 10 20 को 2 बार ये कॉपी कर रहा है। s1 में प्रिंट करूं, सी व्हाट इट इज डूइंग। लेट मी शो इट टू यू। 10 फिर आया 20 फिर इसने 10 20 यहाँ पे अगेन सी 2 बार किया। इफ आई वुड हैव रिटन लाइक दिस, मैं 3 4 कर दूं तो ये 4 टाइम्स कॉपी बनाएगा। Okay, let me hit enter, let me print s1. So look here, 4 times it has made the copy. So into ये क्या करता है? into let me highlight, अगर आप list के साथ यूज करोगे सीरीज में, ब्रैकेट के अंदर में, मतलब इस वाले ब्रैकेट के अंदर में, तो it will create a copy. Okay, now let us move to the next question. Question number 14. What will be the output of the following code? Now if you look here, इस पे ध्यान से देना, ये जो मैं यहाँ into यूज कर रहा हूँ, ये into मैं ब्रैकेट के बाहर यूज कर रहा हूँ, मतलब ये वाला ब्रैकेट मैंने यहाँ क्लोज किया है, उसके बाहर यूज कर रहा हूँ। तो ये क्या करेगा? इट विल मल्टीप्लाई इट, इट विल नॉट क्रिएट अ कॉपी, इट विल मल्टीप्लाई इट। सो दिस थिंग यू हैव टू keep in mind. So let us type the code again and let's see what the output is. I'll go to Python again. अब मैं क्या करूं? s1 कर दूं, ठीक है, इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज का s कैपिटल, फिर मैंने क्या किया? 10 20 किया, फिर इसे बंद किया, सॉरी ये बंद किया, दिस ब्रैकेट आई क्लोज्ड इट, देन आई इनटू 2। सो एक्चुअली ये 10 में 10 को 2 से 20 इट विल बिकम, एंड 20 इंटू 2 40। सो इसके पास 2 ही इंडेक्स होगा, 0 1, एक में 20 होगा, 1 वाले में 40 होगा। सो लेट मी प्रिंट इट। सो यू गॉट द आइडिया। सो इसका आउटपुट क्या होगा? तो यहाँ पे द करेक्ट आंसर वुड बी this one, option A. Option A would be the correct answer. Okay, now let me move down. Question 14 we have discussed. Question 15. When we create a series, two things are created. मैंने highlight कर रखा है। तो जब भी आप series create करोगे तो two things are created.
द आंसर विल बी इंडेक्स एंड द वैल्यू। क्या होता है इंडेक्स और वैल्यू? जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे वी आर क्रिएटिंग दिस सीरीज सी, हमने इंडेक्स यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली इफ आई प्रिंट इट, सो देखो वैल्यू इज दिस पार्ट 20 40 एंड व्हाट इज द डिफॉल्ट इंडेक्स? द इंडेक्स इज 0 and 1. So whenever we create a series, two things are associated with it. One is the actual value and the other is index. Okay, I hope you must have understood it. Now let's move to the other question. We can create a series using a Python sequence. Sequence में हमारा क्या आ गया? List आ गया, tuple आ गया and string. These three are sequence. ठीक है, list form तो ये तीनों से बनता है। एनडी एरे से भी हम बना सकते हैं, पाइथन डिक्शनरी से वी कैन क्रिएट स्केलर वैल्यू, मतलब सिंगल वैल्यू से भी वी कैन क्रिएट ऑल ऑफ दीज। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ दीज। 16 का आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द अदर क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू चेंज द विल टाइप। ओके, मैंने बोला था जब भी आपको डेटा टाइप चेंज करना हो तो आप दोनों इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट pandas एज np, import pandas as pd, import numpy as np. तो आप the correct option is option A। यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पे np डॉट लिखना बहुत जरूरी है। सेकेंड वाले ऑप्शन में आई विल जस्ट गो, मैंने यहाँ पे np डॉट नहीं लिखा है, ठीक है, दैट इज वाई दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। थर्ड में भी आपको देखो pd डॉट मैंने किया है, pd डेटा फ्रेम का पार्ट है, डेटा फ्रेम से वी कैन नॉट चेंज द डेटा टाइप, we will always change the data type through numpy array, इसलिए this option is also not correct। okay, और इसमें देखो, इसमें मैंने ठीक किया लेकिन सीरीज का s मैंने स्मॉल दे दिया। ये सब प्लीज यू हैव टू कीप इन माइंड, सीरीज का s हमेशा कैपिटल रहेगा और डी टाइप में आप देखो सारा स्मॉल लेटर्स में है, ठीक है। तो मोस्टली एक थिंग देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस दैट मोस्टली since Python is a case sensitive language, all of the syntax they are mostly in small letters except data frame का D capital, F capital. When I discuss the data frame question I will discuss about that. तो आप समझ गए 17 का। let us 18, when we create an empty series, what is the data type of a series? So the data type of a series is, जब भी हम empty बनाएंगे तो क्या होगा? float 64। इसका डेटा टाइप क्या होगा? आप एम्प्टी सीरीज बनाओगे तो उसका डेटा टाइप क्या होगा? फ्लोट 64। ओके, वेरी सिंपल। नाउ लेट अस मूव टू द अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। जैसे ये सीरीज हमारा दिया हुआ है, ठीक है, आई जस्ट गो डाउन। ओके, लेट मी हिट एंटर। ओके, ये सीरीज दिया हुआ है, बोल रहा है कि S1 1 व्हाट विल बी द आउटपुट। तो 1 पे व्हाट डू वी हैव? We have 20, so the correct answer will be ये 20 will be the output, ठीक है, मैंने हाईलाइट किया। So let's come to question 20. This is the series given. What will be the output of the following code? S1 minus 1. तो यहाँ पे the correct answer will be C, error। यहाँ पे क्या हो जाएगा? error हो जाएगा। So here S1, then I'm using minus 1. Okay, if I hit enter, okay, we cannot use negative index directly, but however indexing हमारा जैसे the default index for 10 is 0, 20 के लिए the index is 1, 30 के लिए the index is 2, 40 के लिए the index is 3, 50 के लिए the index is 4। तो ये फॉरवर्डिंग बैकवर्ड इंडेक्सिंग में क्या होता है? 50 का इंडेक्स विल बी -1, 40 का इंडेक्स क्या हो गया? -2, 30 का -3, इसका -4 और इसका हो गया -5। लेकिन ये यूज होता है when we use slicing. Okay, I'll come to slicing and discuss this with you. So S1 minus 1, this is giving error. So let us move to the next question. फिर उसके बाद ये वाला सीरीज देखें, S1 6। तो क्या do we have any index as 6? हमारा इंडेक्स कहाँ तक है? We have index as 4. So what will be the correct answer? The correct answer will be, it will produce an error. So the correct answer will be
सी। इस एग्जांपल के लिए मैं S1 यहाँ पे दूं 6 दे दूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। ओके, बिकॉज वी डोंट हैव एनी इंडेक्स एज 6। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइसिंग। अब बहुत लोग नो मेनी पीपल गेट कंफ्यूज बिटवीन इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग में हम क्या करते हैं, स्लाइसिंग में वी ऑलवेज गिव दिस कॉलम नेम। देखो इंडेक्सिंग में व्हाट डू वी डू, लेट मी राइट। इंडेक्सिंग we use a single index inside a series in this bracket. For example, S1 हमारा नाम है तो मैंने दे दिया 1, ठीक है। S1 है, मैंने दे दिया 3। I cannot give negative index. I have just shown it to you. ऐसे नहीं कर सकते। So this is what we will do. Now slicing में क्या होता है, slicing whenever we use slicing, we use colon sign. It has got start value, stop value and step value, ठीक है। it has got start, stop. If we don't give any start, stop or step value, the entire series will be printed as the output. For example, अगर मैं S1 कर दूं और यहाँ पे केवल एक कोलन का साइन दूं तो पूरा सीरीज होगा। S1 देके मैं 2 कोलन का साइन दूं तो भी पूरा सीरीज होगा प्रिंट। S1 में दे दूं, यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू में दे दूं 1 और मैं दे दूं 4, ठीक है। तो जहाँ पे भी मैं कोलन साइन यूज कर रहा हूँ, वी आर यूजिंग स्लाइसिंग। तो पहले वाले पे चलते हैं, ठीक है। देन आई विल कम टू द S1, मैंने एक कोलन दे दिया तो इसमें वी हैव नॉट इंक्लूडेड एनी स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, तो इसमें क्या होगा, सारा सीरीज प्रिंट होगा। फॉर एग्जांपल लेट मी टेक यू टू पाइथन। मैंने S1 और ये कोलन बस दिया, देखो सारा सीरीज प्रिंट हुआ। फिर मैं इसे क्या कर दूं, 2 बार दे दूं, सारा सीरीज हमारा प्रिंट हो गया। सी S1 दिस आउटपुट एंड दिस आउटपुट, दे आर ऑल सेम, ओके। अब मैं इस वाले पे चलता हूँ। S1 मैंने इसमें 1 दे दिया और 4 दे दिया। ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 1 मैंने दिया है स्टार्ट वैल्यू और स्टॉप कितना दिया है, 4 दिया है। मैंने स्टेप नहीं दिया है। स्टेप अगर आप नहीं दोगे तो ऑटोमेटिकली वो 1 से इंक्रीज होता है। सो 1 और 4, तो 1 पे हमारा क्या है, 20 है। 4 का मतलब है ये 3 तक जाएगा, यानी 20, 30, 40 को ये प्रिंट करेगा। यानी इंडेक्स पहले इसने इसको किया, फिर 1 से बढ़ा तो फिर इसने 30 को किया, फिर ये 1 से बढ़ा तो इसने 40 को किया, ठीक है। क्योंकि ये लास्ट वैल्यू जो है हमारा एंड वैल्यू और स्टॉप वैल्यू, ये वहां तक नहीं जाएगा, ये -1 होगा, यानी 4 - 1, स्टॉप -1। सो इट विल प्रिंट 20, 30, 40 अलॉन्ग विद द इंडेक्स सी। समझ गए ये कैसे होता है। सो आई विल नॉट टॉक more about it. Let us come to the question. So you have understood what is slicing. Slicing में use colon sign और indexing में we don't use colon sign, हम individual value देते हैं। So let's come to the S1 1 3। तो यहाँ पे मैंने 1 और 3 दिया, यानी 1 पे ये इसने प्रिंट किया 20 को और 2 पे यानी 20, 30। तो इसमें आप देखोगे तो लास्ट वाले वैल्यू को नहीं करेगा, ये वाले 3 को नहीं करेगा, यानी 1 और 2। सो द करेक्ट आंसर, लेट मी हाइलाइट, द करेक्ट आंसर इज सी, ओके। अब हम नीचे चलते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग सीरीज, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब इस पे दिस इज द गुड क्वेश्चन। S1.LOC, LOC हमारा एक एट्रीब्यूट है, सारा स्मॉल लेटर्स में प्लीज, ये कैपिटल नहीं होता। 1:3। तो देखो इसमें जो स्टॉप वैल्यू है 3, ये 3 को भी इंक्लूड करेगा। तो द करेक्ट आउटपुट विल बी, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग ए,
LOC में क्या हो गया, ये स्टॉप वैल्यू को भी इंक्लूड करता है. दिस थिंग यू विल हैव टू कीप इन माइंड. एक बार मैं जरा कर दूं, S1 को पहले मैं प्रिंट करूं. मैं S1 1 और 3 सिंपल दे रहा हूं. तो मैंने बताया 1 और 2 को केवल दिखाएगा, ये 3 को नहीं दिखाएगा. लेकिन मैं S1 डॉट LOC if I do like this 1:3, so it will include 3 as well. देखो, let's look at the output. So you are getting my point. लेकिन इस वाले में हमारा 1 और 2 केवल आया, तो LOC के साथ क्या होगा, it includes last value as well. So now again let us move to the question number 24. अब ये क्वेश्चन है, I'll just go down. इसमें मैंने LOC यूज किया हुआ है. तो LOC में देखो लास्ट वैल्यू 3 है, सॉरी ILOC. Look here, ILOC is another attribute. Okay, ILOC सारा स्मॉल लेटर्स में. तो ILOC आप यूज करोगे तो इसमें लास्ट वाले वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेगा, तो ये 1 और 2 वाले को दिखाएगा. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन C. ओके, सो लेट मी टाइप इट हेयर. अगर मैं यहाँ पे ILOC यूज करूँ, मैं यहाँ पे केवल ILOC, तो मैंने बोला ILOC में ये लास्ट वाले 3 को नहीं करेगा, 1 और 2 को दिखाएगा, जैसे नॉर्मल स्लाइसिंग में it shows. Okay, you have got the output. So let us move to the next question. 25 में we have already 1:3. Okay, 25. Okay, we have already spoken about this, so let us leave this. 26 में आते हैं. 26 को मैं नीचे ले जाऊं. Let me take it down. अब यहाँ पे देखो, मैंने स्लाइसिंग कोलन साइन यूज किया हुआ है, तो आई एम यूजिंग स्लाइसिंग. ठीक है, अब इसमें 1 कोलन, तो यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू मैंने केवल दिया है, स्टॉप नहीं दिया. अगर आप स्टॉप नहीं देते हो तो ये पूरे लास्ट वाले यानी ये इसको भी कवर करेगा. इफ आई डोंट मेंशन स्टॉप वैल्यू यानी इसको भी, तो 1 से यानी ये प्रिंट करेगा 120, फिर ये इस वाले को करेगा, फिर ये इस वाले को करेगा, फिर ये लास्ट वाले को करेगा. तो what will be the correct output? The correct output will be, okay, 1 2 3 4. So the correct answer will be A, 1 2, ये वाला ऑप्शन. तो let me type this command in Python. S1 1 कोलन, इसे मैंने स्टॉप नहीं दिया हुआ है, तो ये 1 से लेके सारे वैल्यूज एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा. देखो 1 2 3 4. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 27. इसमें देखो, इसमें लेट मी मैक्सिमाइज. इसमें मैंने स्टार्ट नहीं दिया हुआ है, इसमें केवल स्टॉप दिया हुआ है, कोलन 5. इसका मतलब है ये 5 का मतलब है 4 तक जाएगा. ठीक है, यानी 0 से लेके 4 तक, यानी ये क्या करेगा, सारे सीरीज को प्रिंट करेगा. ओके, फॉर एग्जांपल इफ आई टाइप इट हियर S1, फिर मैंने 5 दे दिया, तो 0 से 4 हमारा ये सारा प्रिंट करेगा. देखो, लेकिन मैं अगर S1 यहाँ पे 3 दे दूं, तो ये क्या प्रिंट करेगा, 0 1 2, लास्ट वाले वैल्यू को इट डज नॉट इंक्लूड. ओके, गॉट इट. सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 28. अब 28 वाले में क्या है, मैंने माइनस यहाँ पे देखो ये सीरीज है, और यहाँ पे एक बार लेट मी मैक्सिमाइज इट. यहाँ पे 2 बार मैंने कोलन दिया, मैंने स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू नहीं दिया हुआ है, बस मैंने -2 दे रखा है. -2 का मतलब क्या है, सॉरी -1 दे रखा है, मतलब स्टेप वैल्यू मैं कितने से इसे ये कर रहा हूँ, घटा -1 से. तो ये क्या करेगा, इट विल रिवर्स द सीरीज, इट विल रिवर्स द सीरीज. फॉर एग्जाम्पल देखो, इसका आउटपुट जो होगा करेक्ट रिवर्स कर देगा, यानी 5 तो हमारा है नहीं, 5 we don't have, so the correct answer will be D. okay, तो -1 क्या करता है, रिवर्स कर देता है सीरीज को. लेट मी शो इट टू यू.
S1 दो बार मैंने दिया, -1 दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इट विल रिवर्स द सीरीज। देखो इसने रिवर्स कर दिया। अब मैं S1 दो बार कोलन साइन देके -2 करूं तो ये भी रिवर्स कर देगा सीरीज को, पर दो दो के गैप पे, यानी पहले ये आएगा, फिर उसके बाद ये 2 आएगा, फिर लास्ट में हमारा 0 आएगा। सो लेट मी हिट एंटर 50, 30 एंड 10। ये भी रिवर्स कर रहा है पर दो दो के गैप पे कर रहा है। नाउ लेट्स कम टू वन एग्जांपल। S1 एक बार मैं प्रिंट करूं, S1 लेट्स से इफ आई टाइप 0:4 तो ये 0 से 3 दिखाएगा, इट्स वेरी सिंपल। लेकिन मैं ऐसे कर दूं S1 0 4 और यहाँ पे मैं बढ़ा दूं 3 से। ये जो मैं what I'm doing is I am increasing the value, step value मैं 3 दे रहा हूँ। तो पहले 0 था, तो 0 में हमारा क्या इसने प्रिंट किया, it will print 10, again 3 से इंक्रीज हो गया तो it will go to 3, it will print 0, 10 and 340। ओके, लेट से मैं इसे 4 से बढ़ा दूं तो ये केवल पहले वाले वैल्यू को प्रिंट करेगा। ओके, व्हाट इज दैट, 0 एंड 10, क्योंकि यहाँ 4 से बढ़ जाएगा तो ये 0 + 4 4 हो जाएगा। तो हमारा स्टॉप वैल्यू क्या है, 4 है। इसका मतलब है वी हैव टू गो टिल 3। सो हमारा इसमें केवल ओनली वन एलिमेंट विल शो एंड दैट इज 0, 10। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब 29 क्वेश्चन में हमारा क्या है, ये हमें 10:20। सो 10:20 हमारे पास कोई इंडेक्स नहीं है, तो व्हाट इट विल शो इज एम्प्टी सीरीज। देखो इसमें एरर नहीं देगा। अब जब स्लाइसिंग के साथ व्हेन वी यूज इंडेक्स दैट इज नॉट देयर, या इन इंडेक्स से बाहर हम यूज कर रहे हैं, तो उसमें हमारा आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सीरीज। जैसे देखो यहाँ पे S1 में प्रिंट करूँ, अगर S1 में 10 दे दूँ, यहाँ पे आई एम यूजिंग इंडेक्स ओनली, तो एरर दे देगा ये, ठीक है, की एरर। लेकिन इफ आई टाइप S1 अगेन आई एम 10:20, मैं यहाँ पे स्लाइसिंग यूज कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, एम्प्टी सीरीज। देखो यहाँ पे एम्प्टी सीरीज दिखाया, कैसे पता चला हमारा एम्प्टी सीरीज है, दिस shows that I have just highlighted it, it's an empty series. So just give me a moment. So the correct answer for this will be C, empty series ये दिखाएगा, ठीक है। Now let us move down, 30 question, let me hit enter। okay, 30 वाले क्वेश्चन पे कंसिडर द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है। ये सीरीज है एक S1 डॉट शेप, शेप हमारा एट्रीब्यूट है। तो शेप क्या करता है, हमारे को बताता है कितने एलिमेंट्स हैं। तो एक एलिमेंट हो गया, दो एलिमेंट हो गया, तीन एलिमेंट हो गया, चार एलिमेंट हो गया, पांच एलिमेंट हो गया। सो इट विल हैव द करेक्ट आंसर विल बी 5। ये टपल के फॉर्म में दिखाता है। टपल मैंने बताया था ये ब्रैकेट के अंदर दिखाएगा। जैसे मैं एक बार S1 को प्रिंट कराऊं, मैं S1 डॉट शेप करूं, शेप इज एन एट्रीब्यूट, सारा स्मॉल लेटर्स में। देखो यहाँ 5 कॉमा आ गया, ये टपल के फॉर्म में दिखाता है, ठीक है। अगर S1 डॉट में एक एट्रीब्यूट है साइज, ठीक है, साइज इज ऑल्सो एन एट्रीब्यूट, पर साइज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिखाएगा बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ टपल। टपल कहने का मतलब व्हाट डू आई मीन, टपल में ये ब्रैकेट रहेगा एंड देन आई विल हैव दिस कॉमा साइन, बट साइज में केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिखाएगा विदाउट एनी ब्रैकेट एंड कॉमा। दिस इज द आंसर। साइज और शेप में प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which attribute of a series returns boolean value? ये has nans boolean value रिटर्न करता है, ठीक है। दो है, is empty और has nans। ये क्या करता है, boolean value। boolean value का मतलब है true and false। तो boolean value में जब आप true दोगे तो true का t has to be capital, true का t कैपिटल का, false का f कैपिटल होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं सीरीज S1 में मेरे पास एक भी नैन वैल्यू नहीं है, तो S1 डॉट हैज नैन्स अगर मैं करूं तो ये क्या दिखाएगा, फॉल्स, फॉल्स दिखाया। लेकिन इफ आई क्रिएट अ सीरीज S2 बराबर PD डॉट सीरीज, मैं बस दिखा दे रहा हूं,
10, 30, 60, np डॉट नैन। एक मैं नैन वैल्यू डाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं s2 को प्रिंट करूं। अब मैं s2 डॉट हैज नैन्स करूं तो ये क्या करेगा, इट विल शो ट्रू। देखो आपको इसने क्यों ट्रू दिखाया, बिकॉज हमने s2 में एक nan वैल्यू डाल दिया, दैट इज व्हाई इट हैज शोन ट्रू। ओके, एक ऐसे ही है s2 डॉट एम, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। इसमें फॉल्स दिखाया क्योंकि हमारा एम्प्टी सीरीज नहीं है, इसलिए फॉल्स दिखाया। ये ट्रू कब दिखाएगा, जब हमारा एम्प्टी सीरीज होगा। जैसे मान लो मैं एक सीरीज बनाऊं s3 बराबर pd डॉट सीरीज मैंने बना दिया, इसमें कोई वैल्यू, तो ये एम्प्टी बन गया। s3 डॉट एम्प्टी अगर मैं करूँ तो ये क्या दिखाएगा, ट्रू। तो दो एट्रीब्यूट है, एक एम्प्टी एंड देन वी हैव हैज नैन्स। ये दोनों क्या करता है, रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू। बूलियन वैल्यू मींस ट्रू और फॉल्स। Now let us move to the next question. Okay. ओके, हेड फंक्शन क्या करेगा, हेड फंक्शन क्या करता है, टॉप 5 रिकॉर्ड्स को दिखाता है। हेड में सारा स्मॉल लेटर्स में, तो हेड क्या करेगा, द करेक्ट आउटपुट विल बी दिस वन। पहले 5 रिकॉर्ड्स को दिखाएगा, ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन। आई एम नॉट गोइंग टू शो इट टू यू। s1 डॉट हेड ब्रैकेट में मैंने 2 डाल दिया, तो पूछता है कि व्हाट डज हेड फंक्शन डू। सो हेड फंक्शन व्हाट, इट शोज द टॉप 5 रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ सीरीज और अ डेटा। हेड 2, तो इसमें क्या होगा, टॉप के 2 रिकॉर्ड्स को दिखाएगा। एक बार मैं जरा इसे नीचे ले जाऊं, लेट मी, टॉप के 2 रिकॉर्ड्स, यानी टॉप के 2 रिकॉर्ड्स कौन कौन से हो गए, ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, मैं हाईलाइट कर दूं। ओके, क्योंकि 2 रिकॉर्ड टॉप के दिखा रहे हैं। सिमिलरली वी हैव गॉट अ टेल फंक्शन, ठीक है। हमारे पास कौन सा फंक्शन है, टेल है। तो इस क्वेश्चन में मैंने टेल यूज किया, ये बॉटम के 5 रिकॉर्ड्स दिखाएगा, यानी बॉटम के 5 रिकॉर्ड्स। गिव मी अ मोमेंट। हाँ, ये 10, 20 तो बॉटम के रिकॉर्ड हो गए हैं 5, 1 2 1 2 3 4 5, यानी ये दिखाएगा। ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मैं जरा एक बार लेट मी शो इट टू यू, एक सीरीज में बना लूँ। S4 is equal to pd dot series. Quickly I will create 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okay. Now S4 dot tail. तो मैंने बताया कि आप 1 2 3 4 यानी 10 को छोड़ के ये सारा, देखो इसने ये दिखा दिया, ठीक है। दिस इज द आउटपुट दैट वी हैव गॉट। So I just chose the correct answer. Okay. 34. Now let us come to question number 35. ओके, इंटू टू मैंने किया है। ये क्या, इंटू क्या होता है, इंटू इज एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। इंटू क्या करता है, इंटू इज एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर एंड इज यूज टू फाइंड द पावर ऑफ अ नंबर, ठीक है। तो एक बार लेट्स गो टू द क्वेश्चन। तो S1 में इंटू टू, दिस इज द सीरीज। तो यानी 10 पर पावर 2 कितना हो जाएगा, इंटू 2 का मतलब है 10 पर पावर 2। अगर यहाँ पे 3 रहता तो 10 पर पावर 3, 4 रहता तो 10 पर पावर 4, 20 पर पावर 2 विल बी 400, ठीक है। 30 पर पावर, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी सारे का पावर कर देगा। लेट मी शो टू यू। ओके, आई हैव द सीरीज S4 है हमारे पास। S4 में करूं 2 बार इंटू मैंने किया, 2 कर दिया, तो ये सारे का पावर। सो दिस इज द आंसर। 10 पर पावर 2 100, 20 पर पावर 2 400। ओके, वेरी सिंपल। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। टू सीरीज, व्हाट हैपेंस, अगर 2 सीरीज पे हम करें तो क्या होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, the matching indexes undergoes mathematical operation and the non-matching indexes produces nan values, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं एक सिंपल एक सीरीज
बनाता हूँ, मैं एक S5 बना दूँ, S5 बराबर पी डॉट सीरीज, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँ, 10, 20, 30, ठीक है। मैं यहाँ पे इंडेक्स ले लूँ, इंडेक्स अलग से इंडेक्स एम पे A, B, C। तो वन थिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नोट हियर इज दैट इंडेक्स आर्गुमेंट है सारा स्मॉल लेटर्स में। देखो मेरे पास वैल्यूज कितने, 3 वैल्यूज हैं, ये हमेशा याद रखना। 3 वैल्यूज हैं हमारे पास एंड आई एम टेकिंग इंडेक्स ABC। तो आप उतने ही इंडेक्स लोगे जितने वैल्यूज हैं। ऐसा नहीं कि वैल्यूज 4 है मेरे पास, मैंने 3 इंडेक्स ले लिया। अगर 3 लिया तो इट विल प्रोड्यूस एरर। अगर मान लो मेरे पास 5 वैल्यूज है, मैंने 6 इंडेक्स ले लिया, तो दिस विल आल्सो प्रोड्यूस एरर। तो इंडेक्स शुड मैच विद द नंबर ऑफ वैल्यूज। तो ये हो गया। लेट मी प्रिंट S5, मैंने S5 किया। अब मैं S4 एक बार करूं तो देखो S5 में इंडेक्स अगर आप देखोगे, ये देखो क्या A, B, C है। S4 में हमारा इंडेक्स क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या do we have any index which is matching in either S4 or S5? No, we don't have. So if I perform mathematical calculation S4 plus S5, तो यहाँ पे एक भी इंडेक्स मैच नहीं कर रहा, तो हमारा क्या होगा, ये सारे में NaN वैल्यू, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 आएगा, उसके सामने हमारा रिजल्ट आएगा NaN। सिमिलरली ABC आएगा, उसके सामने हमारा क्या आएगा, NaN। देखो आप 0 के सामने क्या आ गया, NaN, 1 के सामने भी आ गया, 2 के सामने 3, 4, 5, फिर A के सामने भी। ऐसा क्यों आया, बिकॉज दोनों सीरीज में हमारा कोई भी मैचिंग इंडेक्स नहीं है, दैट इज वाई। नाउ लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल, S1 में प्रिंट करूं और S4 प्रिंट करूं। अब आप ध्यान से देखना, तो देखो 0 हमारा यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 आई हैव गॉट हेयर, आई हैव गॉट हेयर एज वेल 0, 1, 2, 3, 4 आई हैव गॉट हेयर एज वेल। सो इसमें मैच कर रहा है, लेकिन 5 इंडेक्स इज नॉट मैचिंग। तो 5 के लिए हमारा NaN वैल्यू आएगा, लेकिन 0 वाला हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 20 40। तो लेट मी add S1 plus S4, S1 plus S4. So here the actual addition will take place, okay, but for index number 5 in S4 it will produce NaN value। देखो आप NaN देखो यहाँ पे आया, तो ऑटोमेटिकली सब में डेसिमल पॉइंट ऐड हो गया, क्योंकि मैंने बताया था कि NaN फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट करता है। So you got this? Now let us move to the next question. What will the following code do? We are in question number 37. 0 is to 2, यानी ये 0 और 1 के वैल्यू को चेंज कर देगा। तो the correct option will be option A will be the correct। ठीक है, ये चेंज क्या कर देगा, 0 और 1 की वैल्यू को चेंज कर देगा। जैसे मान लो हमारे पास S1 में प्रिंट करूं, अब मैं लिख दूं S1 0 2 इज इक्वल टू 100 और मैं S1 को प्रिंट कराऊं, तो आप देखो दो वैल्यू यानी 0 और 1 के वैल्यू को इसने चेंज कर दिया। ओके, now let us move to the next question, question number 38। अब यहाँ पे हमारा do we have any index as 10 और 30? नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इट विल नॉट, द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सिंस हमारा इंडेक्स नहीं है, एरर तो नहीं देगा, बट इट विल नॉट चेंज द वैल्यूज। तो मैं कर दूं यहाँ पे 10 और 20 में कर दूं, ठीक है। तो ये देखो S1 में करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल इंडेक्स दूं S1 10 इज इक्वल टू 98, तो ये तो एरर दे देगा। It will show error because we don't have any index as 10, S1 10। Okay, let me type। Okay, आप यहाँ पे देखो, this is interesting, sorry for that। now 10 इंडेक्स नहीं है हमारा, लेकिन इसने क्या किया, लास्ट वाले वैल्यू को चेंज कर दिया। ओके, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर इफ द कमांड क्वेश्चन अगर पूछता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, सपोज करो मैं इसी क्वेश्चन को जरा मॉडिफाई करूं, ठीक है। तो सपोज करो S10 इज इक्वल टू 100, तो ये होगा
it will change the last value of a series। ठीक है, हमारा 10 तो कहीं है नहीं, ठीक है, तो एरर ये नहीं देगा, ये क्या करेगा, लास्ट वाले वैल्यू को चेंज करेगा। ठीक है, तो आप समझ गए। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 39। हमें क्या करना है, इंडेक्स हमारा 0 1 2 3 है, उस इंडेक्स को चेंज करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो देखो पहले वाले ऑप्शन में हमारा इंडेक्स स्मॉल लेटर्स में, दिस इज द करेक्ट वन। री इंडेक्स विल नॉट वर्क हेयर। ओके, ऑप्शन सी में हमारा इंडेक्स का आई कैपिटल है, इसलिए वी हैव नॉट टेकन दिस ऑप्शन। सो सपोज करो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, S1 में हमारा क्या है, 0 1 2 3 4 10 इंडेक्स है। अगर मैं इसे ABCD करता हूँ तो S1 डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू, मैं कर दूँ A कॉमा B कॉमा C कॉमा D कॉमा E। ठीक है, अब मैं इंडेक्स में X इज मिसिंग, अब मैं एंटर करूं, सॉरी, S1 को मैं जरा 0 1 A B C D F तक जाएगा ये, सॉरी मैंने कम दे रखा है इसलिए ये F तक जाएगा, F। ओके, नाउ S1 लेट मी प्रिंट। देखो आप देखो यहाँ पे सारा इंडेक्स हैज गॉट चेंज्ड। ओके, यहाँ पे द इंडेक्सेस वर 0 1 2 3। अब मैं जरा यहाँ पे S1 100 करूँ, जरा S1 100 पे मैं कर दूँ 20 फॉर एग्जाम्पल, ये एरर दे दिया। ठीक है, लेकिन S1 10 में लेट मी सी इज इक्वल टू 23, ये भी एरर दे दिया। नाउ S4 पे मैं करूं, देखो S4 में इंडेक्स हमारा क्या है, नंबर्स है। नाउ लेट मी शो टू यू, S4 यहाँ पे मैं 100 दे दूं इज इक्वल टू 45, कोई एरर नहीं। S4 पे यहाँ पे लास्ट वाले वैल्यू को इसने चेंज कर। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, देखो यहाँ पे सारा हमारा इंडेक्सेस जो था नंबर्स में था, इसलिए इसने एरर नहीं दिया। पर अगर मेरे पास इंडेक्स, लेट मी शो टू यू, S4 भी है, S1 है हमारा, हाँ S1 में हमारा इंडेक्स क्या है, लेटर में है। अगर मैं यहाँ पे S1 10 करूँ, मैं चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे एरर दे देगा, आप ध्यान रखना। तो मतलब व्हाट डिड वी सी, हमने देखा कि when we are changing the index of integer it is getting changed। इंडेक्स अगर नहीं भी है तो, लेकिन अगर मैं लेटर का करता हूं तो it is giving error। so this thing you have to keep in mind। now let us move to the next question। ये हमारा सीरीज है, ठीक है, प्रिंट इन्फो। ये क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, ये ऑप्शन सिंपली ये क्या करेगा, ये ऑप्शन बी यानी सारे सीरीज को प्रिंट कर देगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। ठीक है, अब मैं दूसरे वाले ऑप्शन पे आऊँ, सेम है, प्रिंट इन्फो ग्रेटर देन 40। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन्फो ग्रेटर देन 40। तो ये इन्फो ग्रेटर देन 40 यानी 31 को चेक करेगा, क्या ये 40 से बड़ा है, नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो दैट विल बी डी। ठीक है, एक बार मैं लेट मी 31 41 S8 इज इक्वल टू pg डॉट सीरीज, मैं कर दूँ जरा 31 41 41 comma 51। okay, what we have used, we have taken as data। please don't get confused, यहाँ पे data is optional, हम दे सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, that is up to us। ठीक है, मैंने ये किया, फिर मैंने प्रिंट किया और S8 कर दिया। let me take as info what we, okay, S8 की जगह what will I type, I will type info। info is the name, so print info मैं कर दूँ तो I'll get the series। ठीक है, अब प्रिंट था info greater than 41। तो आप देखो पहले वाले का फॉल्स देगा क्योंकि ये 41 से बड़ा नहीं है, 41 ये बड़ा नहीं है, फॉल्स, और लास्ट वाले के लिए ट्रू।
तो लेट मी हिट एंटर फॉल्स फॉल्स। देखो आप ये ऐसे आ रहा है, सो यहाँ पे ग्रेटर देन 40 किया है, सो इसलिए हमारा फॉल्स आ गया। फिर सेकंड वाले के लिए ट्रू आ रहा है, थर्ड वाले के लिए भी ट्रू आ रहा है क्योंकि 41 बड़ा है। तो लेट मी चेंज द कमांड, मैं जस्ट चेंज कर दूँ 41 की जगह 40 कर दूँ। सो फॉल्स ट्रू ट्रू। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 42। देखो इसमें ध्यान से आप देखना, इसमें देखो आप दो बार इन्फो इसने लिखा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें इट विल नॉट प्रिंट ट्रू फॉल्स, इट विल प्रिंट द एक्चुअल वैल्यूज। तो इसका जो आउटपुट आएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आउटपुट, क्योंकि 40 से बड़ा हमारे पास दो ही है, 41 एंड 51। सो लेट मी शो इट टू यू। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, अगर एक बार इन्फो यूज करेगा तो इट विल प्रिंट बूलियन वैल्यू ट्रू फॉल्स सारे को करेगा, लेकिन दो बार मैंने इन्फो यूज किया तो इट विल ओनली प्रिंट दोज वैल्यूज विच मैचेस। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कर दूं, ठीक है, फिर मैंने इन्फो लिखा, फिर इन्फो ग्रेटर देन 40, सी व्हाट इज द डिफरेंस। अब ये केवल दो वैल्यू को दिखाएगा और बूलियन नहीं दिखाएगा, एक्चुअल वैल्यू को दिखाएगा, यानी 41 एंड 51। सो लेट मी हिट एंटर, सी दिस इज द आउटपुट। सो यहाँ पे लेट मी मूव डाउन, 42 हो गया, 43 एक बार स्लाइसिंग वाले पे मैं 43 पे क्या है, इसमें वी हैव टू a little careful about everything, okay, we'll have to very careful। यहाँ पे देखो मैंने -3 और कोलन दिया हुआ है, आप केवल इंडेक्स यूज करोगे तो एरर देगा, लेकिन कोलन मतलब मैं स्लाइस यूज करना हूँ। तो इसमें वी हैव द स्टार्ट वैल्यू एज -3, no stop value given, so it will go till the end, okay, no step value given, so it will be increased by 1। अब मैंने बैकवर्ड इंडेक्सिंग में गया था, सो -1, तो -1 we have, so at -1 we have 50, -2 we have 40, -3 we have 30, ठीक है, -4 we have 20, -5 we have 10। तो हमने यहाँ पे -3 स्टार्ट वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो -3 पे हमारा क्या है, ये 30 है, और स्टॉप वैल्यू हमने नहीं दिया हुआ है। तो आप देखो पहले तो -3 वाले को प्रिंट करेगा, और मैंने स्टेप वैल्यू नहीं दिया हुआ है, स्टेप वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यानी ये -3, पहले -3 को इसने प्रिंट किया, तो -3 पे हमारा क्या है, 30 है। फिर -3 + 1 हमारा क्या होगा, -3 + 1 क्या होगा, -2 हो जाएगा। तो -2 पे व्हाट डू वी हैव, 40, है ना। देखो यहाँ पे -2 पे मैं जरा हाईलाइट करूँ, वी हैव 40, तो ये क्या प्रिंट करेगा, सॉरी जस्ट गिव मी अ मोमेंट, -2 पे फिर ये 40 प्रिंट करेगा, फिर ये -2 + 1, क्योंकि हमने स्टेप नहीं दिया हुआ, तो -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1, यानी -1 हमारा क्या करेगा, 50। तो -1 यानी लास्ट तक ही जाना है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, 30, 40 एंड 50। सो द करेक्ट आंसर विल बी दिस वन। So the correct option will be option D। इसमें प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, मैंने माइनस वाला बता दिया, अभी मैं एक दो और डिस्कस करूंगा सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। S1 मैं जरा प्रिंट करूं, S4 मैं करता हूं, ठीक है, हाँ S4 यहाँ पे S1 में बनाएंगे तब डॉट, ठीक है, 10, 20, 30,
40 50, दिस इज व्हाट वी हैव। S1 मैंने प्रिंट किया, S1 मैंने किया -3, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, -3 पे हमारा 30 है, यानी 30 40 और 50 ये आंसर आएगा। ठीक है, अब मैं कर दूं S1 -4, अगर मैं करता हूँ, ध्यान से देखना, तो -4 पे क्या है, -1 पे 50 है, -2 पे 40, -3 पे क्या है 30, -4 पे 20 है, तो ये क्या होगा 20 30 40 50, दिस विल बी द आउटपुट। ओके ओके, क्योंकि इसमें स्टॉप वैल्यू नहीं जो स्टेप, अब देखना इसमें सपोज करो मैं ऐसे देता हूँ, यहाँ पे मैं दे के -1 कर दूँ, तो देखो इसमें स्टॉप वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन स्टेप में क्या कर रहा हूँ, -1 कर रहा हूँ, तो -4। ठीक है, लेट मी सी द आउटपुट 20 एंड 10। ओके, तो -4 पे हमारा क्या है, -4 पे 20 है। ठीक है, फिर -4 एंड -1 इज हाउ, -5, तो -5 पे फिर हमारा क्या है 10 है, दैट इज वाई ये क्या आ रहा है हमारा 10 प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसे -2 कर दूं तो केवल हमारा एक ही वैल्यू प्रिंट करेगा विच इज 20। ओके, गॉट इट। So this is how it is working. We will not go deep into it. This इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा. So let's not focus here. Okay, now let me move to the next question. अब ये वाला क्वेश्चन है, इसका आउटपुट क्या होगा, तो आप इसमें ध्यान से देखो, ये एरर होगा क्योंकि यहाँ पे सीरीज में मैंने सब कुछ तो ठीक दिया है, लेकिन ये एक ही ब्रैकेट दिया है, तो ये चीज़ याद रखना, आप एक ब्रैकेट देंगे तो एरर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर या नहीं तो हम लिस्ट देते, यानी तो टपल नहीं तो डिक्शनरी। सो लेट मी शो इट टू यू, सो द करेक्ट यहाँ पे क्या होगा, एरर विल बी देयर। लेट मी हाईलाइट, बहुत बेसिक क्वेश्चन है बट दिस क्वेश्चन माइट कम। जैसे मैं S1 बराबर pd डॉट सीरीज मैंने लिखा, अब मैं दे दूँ 10, 20, 30, 40, देखो ये एरर दे दिया इसने। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द, आप यहाँ देखो जरा, मैं लेट मी मैक्सिमाइज, मैंने ये वाला ब्रैकेट स्टार्ट किया है और मैं पहले ये वाला ब्रैकेट बंद कर रहा हूँ, देखो आप यहाँ पे ये वाला सीरीज का, और इसको बाद में बंद कर रहा हूँ, तो ये भी क्या होगा एरर। तो ये भी क्या होगा, एरर विल बी देयर। लेट मी शो टू यू। ओके, मैं जरा एक बार, लेट मी शो टू यू, लेट मी रिपीट द कमांड। मैंने पहले ये किया, लेकिन मैं बंद किसे कर रहा हूँ, पहले सीरीज वाले को, इसको बाद में, तो दिस विल आल्सो प्रोड्यूस एरर, invalid syntax. Okay, now let us move to the, I think that this is the last question. Okay, ये क्वेश्चन है, आप देखो यहाँ पे प्रिंट s %2 डबल इक्वल टू 0, लेट मी टाइप इट हियर। ओके, 5 6 S1 S11 लेता हूँ, pg डॉट सीरीज 1 2 3 4 4 5, लेट मी सी 5 6 दिया, फिर मैंने इंडेक्स अलग से ले लिया, इंडेक्स में नंबर ऑफ वैल्यूज जितने उतने दूंगा, ए बी सी डी एफ, ए हो गया, फिर मैंने ले लिया बी, फिर मैंने ले लिया सी, देन आई विल टेक डी, देन आई विल टेक ई, देन आई विल टेक एफ। इन्वर्टेड कॉमा मैं दे रहा हूँ बिकॉज इट्स अ लेटर। ठीक है, S11 हो गया। अब प्रिंट इसने क्या किया, क्वेश्चन इज S11, फिर इसने क्या किया, S11 % डबल इक्वल टू 0, दो बार इक्वल क्यों देना जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि, तो परसेंट क्या करता है, परसेंट इज अ मॉडुलस ऑपरेटर, ये रिमाइंडर निकालता है, क्या करता है रिमाइंडर, तो इसमें क्या करेगा, एक को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर 0 होगा, नहीं होगा। अगर आप 2 को करोगे 2 से डिवाइड तो रिमाइंडर विल बी 0, 3 को करोगे तो नहीं होगा, 4 को करोगे तो होगा, 5 को करोगे तो नहीं होगा, 6 को करोगे तो होगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा दैट इज बी के सामने 2, डी के सामने 4 और
F के सामने 6 यानी BDF। ओके, लेट मी हिट एंटर। देखो आप 246 क्यों आया? क्योंकि जिसका रिमाइंडर 0 है वो दे रहा। अगर मैं यहाँ पे कमांड चेंज करके मैं अगर 1 देता तो यहाँ पे जिसका यहाँ पे इक्वल टू 0 की जगह मैं अगर 1 करता तो इसमें आंसर आता 1, 5 और 6 यानी A, C और F, A, C और E। हमारा क्या आता 1, 3 and 5। See, so this is you have understood. So very simple. Or one thing I'll just a panda series can be thought of as a column or a row essentially. Pandas में हमारे पास एक ही कॉलम होता है, ठीक है? तो pandas सीरीज में हमारा एक ही कॉलम होता है। तो सीरीज इज अ वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, डेटा फ्रेम is a two-dimensional data structure. I'll discuss about the questions on data frame later on. So series पे I have discussed a lot of questions. Please go through this question. I've explained it. It's a bit long video, but please be patient while watching it. I hope that it will give you a better idea about series and you will be able to solve the problems in your term 1 examination. So that's it from my end. Thank you everyone. Please watch this as it's a very important video.